Bismillahirrahmanirrahim. Let us start with one of the topics that very important topics that we have missed before the midterm exam. So, as I committed to you that we shall be doing this topic. So, this was the topic of shear center, and as you can see that this topic you can see over here in this picture a channel section beam, and if you look at this you see some sort of a load or a force is being applied, but if you see some sort of a bending is being happening, okay, but if you look at this precisely, this is not a bending. It is one of a very weird phenomena of which we cannot call bending, but it is basically kind of a twisting. And remember, twisting is, if it happens in a structure, it means that your system has failed. And if you look at it from mechanics point of view, solid mechanics point of view and structures point of view, you do not have any fundamental equations or differential equations that will precisely able to help you identify the boundary conditions and solve the differential equations for twisting, because it is a very weird phenomenon you can have in different three-dimensional planes twisting happening. So that is why if it happens in a structure, it results in a failure. And certainly this shear center is an important phenomena from the bending stability point of view, and it is very important for the aircraft industry. And it is important in the aircraft industry, the reason being that the aircraft wings, the wings of the aircraft and the fuselage structures are basically made up of special type of structures which are called as thin walled structures or thin walled open sections. They are made up of that, which can be basically in different forms, one and shapes. Like this is a channel section, you can have a angle section, you can have a C section, you can have a hat section, uh, by in the construction of your fuselage, and also in the construct mainly in the construction of your aeroplane wings. So if you look at it over here, like we have look at this photo, not this one, but this one, if you look at it, this is the functions of aircraft structures. If you look at it, this is basically an aerofoil. You have studied already this in fluid mechanics, and as you know, the wing of an aeroplane is basically, if you take a cross section of the wing of your aeroplane, it's basically going to be an aerofoil. Okay, so the structures of most flight vehicles are thin walled structures. If you look at it from within, the aeroplane wing is basically hollow, made up of very thin walled sections, the structures which are basically shell shaped. Okay, and they can resist the loads, the aerodynamic loads acting on the wing structures, and provides the aerodynamic shape, these thin walled structures. And also they protect the contents from the environment, like extreme conditions on the outside of the wing and the fuselage, uh, lightning, rain, all these kinds of, it's talking about the environment. Most critically is basically the electrical lightning that basically struck the aeroplane during its flight. Okay, so, and if you look at this picture also, if you see, these are, you can see in this picture, this is basically a model, 3D model of an aeroplane. But if you look at it very precisely, you can see these thin walled structures gelled into the fuselage and the wings, made up of thin walled structures. So that is why we are studying this. Very important from the aircraft industry. And here basically, why are we using the thin walled structures? Because they are lightweight
and most of the time they are being made up of aluminium, composites and titanium materials depending upon the type of an aeroplane. Okay, so let's start with our after doing this. Okay, so we have studied the reason why we are studying this. Okay, if you look at it, this beam over here, okay, if you look this beam, this is the force P. This is unsymmetrical loading of thin walled members and the shear center. Okay, this beam, the force P is applied at a point uh, over here, exactly at the centroid of this section. It is being applied. Okay, and the moment generated will be P into X. Okay, this is the cantilever channel beam with vertical plane of symmetry. अच्छा जी, अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया है कि ये जो फोर्स पी ऐड कर रही है, इसमें क्या होगा, ये बेसिकली हेल्प करेगी और मेंबर जो है वो बेसिकली उसके अंदर पी इंटू एक्स बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हम बेंडिंग स्ट्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी हमने कहा है कि क्योंकि मेंबर जो है वो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री में अलोंग द लेंथ उसके अंदर क्या करते हैं शेयर क्रिएट होगा, तो बेसिकली जो शेयर फोर्स क्रिएट होगी उसको उसके ऊपर ये इक्वेशन वैलिड हो सकती है। क्यों? बिकॉज जब हमने ये ड्राइव किया था रिलेशन, तो हमने ये कहा था कि आपके पास इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए यू नीड टू हैव अ वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं अभी वैलिड होंगी, ठीक है। और हम ये बात जानेंगे कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन ले लें तो ये P अगर V के बराबर है, हमने कह दिया V इक्वल्स टू P, तो बेसिकली आपका जो बेंडिंग मोमेंट जो इसका जनरेट होगा वो बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस की कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उसके सेंट्रॉइड से होते हुए जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर बेंडिंग भी क्रिएट हो रही है और शेयर भी क्रिएट हो रही है, और हम बेसिकली ये रिलेशन हमारे पास दोनों वैलिड है, ठीक है। अब हम करेंगे ये कि एक और बेसिकली इसकी अगर हम इसको रोटेट कर दें, इस बीम को अगर हम रोटेट कर दें बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है ना। अब जब हम इसको रोटेट करेंगे तो आपको लॉजिकली नजर आ रहा है कि अब भी बेंडिंग मूवमेंट जो है वो अबाउट द न्यूट्रल प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू एक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स V है जो कि P के बराबर है, अब वो क्या करेगी कि इसके अंदर आपके पास बेंडिंग तो होगी, डेफिनेटली ये बेंड तो होगा, लेकिन इसके अंदर जो बेसिकली अगर जब ये जो बेसिकली आपकी शेयर जो होगा बेंडिंग प्लेन जो ऑफ सिमेट्री जो होगी वो इनवैलिड हो जाएगी, वो वैलिड नहीं होगी। अगर आप इसको गौर से देखें, आप खुद से भी इस सेक्शन के ऊपर फोर्स लगाएंगे और इसकी अगर थर्ड डायमेंशन में ये फिक्स्ड है किसी दीवार के ऊपर, तो अब क्या होगा कि आपका वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, उसकी वजह से होगा कि जब वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बेसिकली वो जो आपके पास बेंडिंग जो होगी वो बेसिकली एक और शेप में आ जाएगी जिसको हम कहेंगे ट्विस्टिंग, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि द ट्रांसवर्स लोड, ये मैंने इसको येलो किया हुआ है, थिन वॉल्ड मेंबर्स डू नॉट पोजेस द वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री था, ठीक है। और द लाइन ऑफ एक्शन P ऐसे मैंने कहा पास हो रहा है, ठीक है, थ्रू द सेंट्रोइडल न्यूट्रल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस। The couple vector M representing the bending moment in a given cross section is still directed along the principal axis and the neutral axis will coincide, ठीक है ना। and you can calculate the bending stress, ठीक है ना, which is sigma is equals to my upon I जो हमारे पास थी। मगर मगर ये क्या कह रहा है हमको, वी कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द शेयरिंग स्ट्रेसेस, क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेसेस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। और वर्टिकल प्लेन सिमेट्री नहीं है तो इससे क्या हो रहा है, अगर आप ये पिक्चर देखें आपको नजर आएगा यहाँ पे, क्या इस पिक्चर में आपको नजर आ रही है कोई वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो ये वो कहना चाह रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि हम बेसिकली ये बात जानते हैं कि द शेयरिंग स्ट्रेसेस एट एनी पॉइंट इट कैन बी ऑब्टेन्ड, अगर हम चाहें तो शेयरिंग स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस हो एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस हम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ठीक है शेयरिंग स्ट्रेसेस जनरेट तो हो रही हैं, लेकिन ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला वैलिडेट नहीं करेगा, ठीक है ना, बिकॉज वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये मैं बार बार आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ।
ठीक है। तो अगर हम बात ये करेंगे कि हमारे पास शेयरिंग फोर्स एग्जर्टेड, क्योंकि ये इसमें इस फोर्स भी जो है जहाँ बेंडिंग स्ट्रेस करेगी वह शेयरिंग फोर्स भी जनरेट करेगी। तो द शेयरिंग फोर्स एग्जर्टेड ऑन द स्मॉल एलिमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन हम एज्यूम कर लेंगे उसमें डी एरिया डी ए, ठीक है। वो कौन सा क्रॉस सेक्शन है, ये देख रहे हैं, स्मॉल क्रॉस सेक्शन ले लिया है, ठीक है ना। इसमें डिफरेंशियल एरिया हमने डी ए ले लिया है और इसकी थिकनेस जो है वो टी है, ठीक है। तो हमने कह दिया डिफरेंशियल एरिया क्या हो जाएगा, उसकी थिकनेस टी है और उसकी लेंथ क्या है, लेंथ इसकी यहां से यहां तक लेंथ इसकी ds है, थिकनेस t है, और एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया हो जाएगा आपके पास TDS, ठीक है। अब आपको पता है शेयर फोर्स क्या होती है, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया, मगर एरिया क्या है TDS, तो ये क्या बन गया, आपके पास शेयर फोर्स बन गई आपके पास shear stress into dA, and dA is nothing but you know basically it is TDS, ठीक है ना। और आपको पता है dA is equals to, हमने यहाँ पुट कर दिया TDS, मगर shear stress into T क्या होगा आपके पास, shear stress into T क्या होगा, वो Q होगा। तो ये बन गया DF is equals to, हमने यहाँ shear stress into T को हमने Q पुट कर दिया, तो आपके पास DF is equals to QDS हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास, और आपको ये बात पता है कि Q क्या है आपके पास, Q इज द shear flow, it is the shear flow which is being generated, ठीक है। तो अब हम एक बात ये जानते हैं कि Q इज द shear flow where Q is equal to shear stress into T, मगर हमने याद है जब डेरिवेशन कर रहे थे हम बीम्स एनालिसिस में शेयर पढ़ रहे थे, शेयर इन बीम्स का, तो हम ये भी जानते हैं कि शेयर फ्लो इटसेल्फ की एक और इक्वेशन क्या है, VQ अपॉन I के बराबर है, ठीक है ना। हम ये बात जानते हैं शेयर फ्लो का। अच्छा जी, अब हम ये बात जानते हैं कि जो इस शेयर स्ट्रेसेस की वजह से जो शेयर फोर्सेस जनरेट होंगी वो क्या होंगी आपके पास, वो यहाँ पे जनरेट होंगी, ठीक है, ऑन द अपर फ्लैंज। अच्छा जी, the shearing force exerted on the element of the upper flange AB is basically the horizontal force which is the horizontal shear force, जो आप ऑलरेडी किसके बराबर हमने अभी F किसके बराबर होगा, यहाँ पे मैं लिया था, इट इज 2ds। तो यहाँ पे फ्रॉम A टू B जो हमने बात की, ये वाला फ्रॉम A टू B इट विल बी इक्वल्स टू, ये बेसिकली आपके पास आ रहा है द शेयर फोर्स, और इसकी QDS, मगर इसकी लिमिट क्या होगी A टू B, तो F इज इक्वल्स टू फ्रॉम A टू B QDS। लेकिन आपको एक बात जानते हैं कि इस आपके पास चैनल सेक्शन के ऊपर सिमेट्री है, तो जो बेसिकली अगर यहाँ पे फोर्स F क्रिएट हो रही है तो नीचे जो आपके पास ये दोनों क्या है आपके पास फ्लैंजेस हैं और ये वेब है, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास फ्लैंजेस, अगर एक यहाँ पे आ रही है शेयर फोर्स तो एक इसका, और सिमेट्री है तो बेसिकली एक इसका मिरर इमेज नीचे भी बनेगा, तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि सिमेट्री है। अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस द रिजल्टिंग शेयर फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लोअर फ्लैंज DE इज, यहाँ पे अगर ये F है, यहाँ पे अगर ये F है तो नीचे क्या होगी F डैश, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास D इज सेम मैग्नीट्यूड एज F बट ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है F है, तो यहाँ पे आपके पास F डैश हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप और से देखें ये बेसिकली आपके पास शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, दिस इज द शेयर स्ट्रेस। और इसको अगर आप और से देखें ये आपके पास शो कर रहा है शेयर फ्लो, ये आपके पास जो एरो शो कर रहे हैं दिस इज द शेयर फ्लो। तो आपके पास, अच्छा प्लस आपको ये बात ऑलरेडी पता है, वो ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट या आपके पास जो यहाँ पे ये आपके पास जो शेयर फोर्स आ रही है, अच्छा तो ये जो हमारे पास वेब है, इस वेब के अंदर जो बेसिकली आपके पास शेयर फोर्सेस जो जनरेट होंगी उसका बेसिकली पूरे चैनल सेक्शन का रिजल्टेंट जो होगा उसको हम V के बराबर कहेंगे, और उसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर हमें टोटल चाहिए तो वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम लोअर लिमिट B टू D टाइम्स QDS, ठीक है। अच्छा अब अगर आप इसको गौर से देखें, और एक पिक्चर और है हमारे पास, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये देखें ये आपके पास ये मतलब ये किसी और की पिक्चर है, लेकिन ये बेसिकली देखें ये दोनों आपके पास एक वर्टिकल V या F, और ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्सेस हैं और वर्टिकल, ये दोनों जो हैं क्रिएट क्या कर रही हैं, एक इसको रोटेशन क्रिएट कर रही हैं, एक आपके पास एक रोटेशन इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना।
हमें बेसिकली इस रोटेशन या ट्विस्टिंग इफेक्ट को रोकना है, ठीक है ना। अब रोकना है तो फिर अब हम क्या करेंगे, बेसिकली तो अब हम करेंगे क्या कि हम इस फोर्स V को अपने इस तरह से आइडियली प्लेस करना है कि अगर एक क्लॉकवाइज जाए तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज जाए, तो उसको बैलेंस करे और बीम बेंड करे, ट्विस्ट ना करे, ठीक है ना। तो ये बताना ही चाह रहा है इसी चीज़ को। अगर आप गौर से देखें, द फोर्स F एंड F डैश फॉर्म्स अ कपल। अगर आप गौर से देखें, F और F डैश एक कपल क्रिएट कर रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया। और आपके पास और इसकी बेसिकली कपल की जो डिस्टेंस है, कपल मूवमेंट का जो डिस्टेंस है आपके पास, मोमेंट आर्म जो है वो h है। और याद रखिएगा ये इन दोनों सेक्शंस की थिकनेसेस के सेंटर टू सेंटर है, ठीक है ना, ये बताना ही चाह रहा है। और इसको अगर हमने बेसिकली एलिमिनेट करना है तो इस v को हमने करना क्या होगा, इस तरह से प्लेस करें कि ये आपके पास, इसको हम थोड़ा सा इसेंट्रिक करते हैं, इधर लेकर आ जाए। और ये आपके पास अब भी रोटेशन तो क्रिएट करेगा, कपल मूवमेंट क्रिएट करेगा, लेकिन वो इसका एंटी होगा, बिल्कुल इसके बराबर होगा। और वो बेसिकली इस इफेक्ट को, कौन सा इफेक्ट, ये जो आ रहा है ना, ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो और उससे क्या होगा, प्योर बेंडिंग होगी और साथ आपकी शेयर इक्वेशन भी वैलिड हो जाएगी। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो ये हुआ ये कि अब आपके पास ये आ गया v इंटू ई और ये आ गया F इंटू एच। अब अगेन अगर ये बेसिकली बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को, तो डेफिनेटली आपके पास V इंटू ई और एफ एच बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ से हम कह सकते हैं वी ई इज इक्वल्स टू एफ एच। यू कैन इजिली से दिस पॉइंट वी ई इज इक्वल्स टू एफ एच। यहाँ से हम ई निकाल सकते हैं और ये ई जो होगा बेसिकली ये वाला ई, दिस विल बी टर्म्ड एज द शेयर सेंटर। और ये वो यूनिक पॉइंट होता है जिसमें जो बीम में ट्विस्टिंग हो रही थी, अब ट्विस्टिंग नहीं होगी, बेंडिंग होगी। और ट्विस्टिंग के इफेक्ट को निगलेक्ट कर देगा और आपकी दोनों इक्वेशंस से, बेंडिंग स्ट्रेस की और शेयर स्ट्रेस की, स्पेशली शेयर स्ट्रेस की जो इक्वेशन होती है वो वैलिड हो जाएगी, क्योंकि बेंडिंग आपकी अब बेसिकली एक वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये पी यूँ हो, या पी को ऑब्लिक किसी एंगल पे भी प्लेस कर सकते हैं, तब भी ये आपके पास बेंडिंग क्रिएट करेगा अगर आप इस पॉइंट पे इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप वेल्ड करके किसी भी सेगमेंट को वेल्ड करके उतने डिस्टेंस के ऊपर आप ये लगा देंगे। अगर आप देखें एनआईटी के बच्चों, स्टूडेंट्स ने, आप ही के सीनियर्स ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जिसकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये भी नहीं सर, ये एनआईटी के, अगर आप लैब में जाएं जहाँ पे आपने सॉलिड मैग्नेटिज्म के प्रैक्टिकल किए थे, तो आप ये देख रहे हैं, एक पॉइंट ये देखें, इन्होंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है चैनल के, एक इसने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है थोड़ा सा अंदर, और एक इसने मेरे ख्याल से ये एग्जैक्ट शेयर सेंटर पे किया हुआ है। जब ये लोड अप्लाई करेगा यहाँ पे तो ये प्योर बेंड होगा और ट्विस्टिंग नहीं होगा, यहाँ पे ट्विस्टिंग आएगी। एक पिक्चर और है, ये देखें, यहाँ पे देखें ये ट्विस्ट कर गया, यहाँ पे देखें ये ट्विस्ट कर गया, लेकिन ये बीच वाले पे देखें ये प्योर बेंड हुआ विदाउट ट्विस्टिंग। तो ये आपके पास प्रूव आ गया। ऑल राइट, determine the shear center O of a channel section of uniform thickness, जिसकी B इन्होंने दी हुई है 100 mm, हाइट 150 और थिकनेस 4 mm, ठीक है। यहाँ देख लें हाइट इन्होंने कैसे दी है, सेंटर टू सेंटर ऑफ द फ्लैंज, ठीक है। अब हम जानते हैं, ये हमने जिस तरह से अभी आपको डेरिवेशन की थी, ये हमारे पास T है, ये हमारे पास S है, ये हमारे पास H/2 है, ये फोर्स पॉजिटिव F, ये F डैश, ये V है, जो हमने भी डिस्कस किया है। शेयर फ्लो किसके बराबर होता है, हमारे पास पता है वी क्यू अपॉन आई के, ठीक है। क्यू क्या है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, तो क्यू हम निकाल सकते हैं, क्या होगा, एस इंटू टी, ये आपके पास हो गया एरिया। और बेसिकली हम जो इसका वो होगा वी जो होगा वो क्या होगा यहाँ से H/2,
तो ये क्यू बन गया एस टी इंटू एच बाई टू। तो हम बेसिकली हमारे पास क्यू क्या था, वी इंटू क्यू अपॉन आई। यहाँ वी और आई और क्यू की वैल्यू थी एस टी एच बाई टू, या पुट कर दिया। अब हमने जो इंटीग्रेट किया था डेरिवेशन के अंदर, एफ क्या था, ए टू जीरो टू बी होगा क्यू डी एस, और क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी जीरो टू बी। सिंपल, बहुत सिंपल है, वी एस टी एच अपॉन टू आई टाइम्स ऑफ डी एस। और आपके पास इस पर हम इंटीग्रेट करेंगे एस टी एस, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ इज इक्वल्स टू वी टी एच अपॉन टू आई एस स्क्वायर अपॉन टू। और लिमिट्स क्या होंगी आपके पास, जीरो टू बी। तो आपके पास एफ क्या आ गया, वी टी एच बी स्क्वायर अपॉन फोर आई। ठीक है, अब आपको एक बात पता है, ई इसके बराबर है एच एफ एच अपॉन वी के, तो वी ई बराबर हो जाएगा एफ एच के, जो हमने डेरिवेशन में किया था। तो अब हम अगर ये वैल्यू पुट कर दें, ई इज इक्वल्स टू एफ एच अपॉन वी, तो हमने जो यहाँ पे वैल्यू निकाली थी इसकी, एफ की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, वी टी एच बी स्क्वायर अपॉन फोर आई। ये हमने एफ की वैल्यू यहाँ पे ई पे पुट करेंगे, तो हमारे पास ये बन गया रिलेशन। सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ तक ये एच अपॉन वी आएगा, तो ई बन जाएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर टी अपॉन फोर आई। ये बन गया बी स्क्वायर एच स्क्वायर टी अपॉन फोर आई। और आपको पता है बी क्या है, एच क्या है और टी क्या है, ये टी है, ये बी है और ये एच है। अब हमने क्या किया, चैनल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वेब प्लस ट्वाइस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लैच। तो इसको हमने कर दिया वन बाई टू टी एच क्यूब प्लस टू टाइम्स द वन बाई टू बी टी क्यूब प्लस का बी टी एच बाई टू का होल स्क्वायर। अब टी स्मॉल है तो टी क्यूब और स्मॉल होगा, इसको नेगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास ये बन गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, आई इज इक्वल्स टू वन बाई ट्वेल्व टी एच स्क्वायर सिक्स बी प्लस एच। इसको इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने जो ई निकाला था, कौन सा, बी स्क्वायर एच स्क्वायर टी अपॉन फोर आई, यहाँ पे ये आई को रिप्लेस कर देंगे हम। और सिंप्लीफिकेशन की भी है इन्होंने यहाँ पे, इसको आप यहाँ पुट कर दें, जो पैरामीटर्स आपको दिए हैं सवाल में बी एच, और इनको आप पुट करेंगे तो आपके पास इस सेंटर वो शेयर सेंटर कितना आ जाएगा इस चैनल सेक्शन का, 40 है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। और चैनल इज 460 mm deep overall and its flanges ये है 16 mm thick है, web is 12 mm thick. Assume that all the section is effective in resisting fiber stress and that only the web resists the vertical shear stresses. तो आपने इसका पहले इसी तरीके से ई निकालना, और फिर आपने prepare a sketch showing the distribution of shearing stresses throughout the cross section when the vertical shear, अब देख लिया मैंने आपको, vertical shear दिया 50 kN। तो ये एज ए होमवर्क, चैलेंजिंग होमवर्क है, आप इसको करिएगा।